Good morning, dear students. I am Shivam Saxena, your political science teacher. Today, we will start a new chapter, and this chapter has been taken from your book 1, Political Science. The name of this chapter is Natural Resources and Environment. It is very much important chapter, and basic things, some things that we have discussed in class 9th or 10th. We will revise all this thing, and this chapter is a combination of all the topics which was being provided on this classes. So let's see that what exactly we will learn in this chapter. As the name refers, natural resources and environment. We will basically discuss about what is resources and how the resource is considered to be the natural resources and which resources is considered to be the man-made resources. Another things we will also discuss about the classification of the natural resources, how the natural resources can be classified, and in how many ways we can classify the natural resources too. Next thing we will discuss about that how the human beings are dealing with the natural resources and how much it is important for the human being. We will also discuss about the concept of the natural resources management, how we should manage the natural resources because they are free gift of the nature. And we will also discuss principle and efforts to maintain the natural resources and environment. देखिए, we should enhance or develop our natural resources. We should use it in an economic way. What we should not damage the natural resources. ठीक है. So all these topics we will discuss about. So first we will discuss about the materials. As we know that where we will live, most of the things and the resources that we have are being provided by the nature. If we discuss about the whole earth, the first and the most important natural resources on this earth is land. Land is the natural resources where all kinds of economic and development activity take places. Let's take a simple example. Your house is being built on the land. A factory which is doing the economic activity is also built on the land. A school is on the land. A road is constructed on the land. ठीक है. A forest is also on the land. वाटर इज़ ऑल्सो ऑन द लैंड. ठीक है. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज अगर हम बात करेंगे, सो इट इज़ कंसिडर टू बी अ लैंड. लैंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. नेक्स्ट थिंग विल डिस्कस अबाउट द वाटर. वाटर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. एंड नेक्स्ट इज़ एयर. और द लास्ट वन इज़ फॉरेस्ट. तो व्हेन वी कंबाइन ऑल दिस थिंग्स, तो वी विल से दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है. यानी अगर हम जो भी मटेरियल्स अवेलेबल है हमारे एनवायरनमेंट में, उन सब में सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? आपका लैंड होता है. ठीक है. अभी हम लोग टर्म्स को यूज़ कर रहे हैं कि व्हाट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट नो व्हाट डज द मीन्स ऑफ रिसोर्स. कि भाई रिसोर्स का क्या मतलब है, यही नहीं मालूम होगा कुछ बच्चों को. तो ऐसी कोई भी चीज़, एनी थिंग्स दैट कैन फुलफिल द नीड्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग, ऐसी कोई भी चीज़ जो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की नीड्स को फुलफ़िल कर सकती है. ठीक है. ऐसी कोई भी चीज़ जो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की नीड को फुलफ़िल कर सकती है. ठीक है. और इट मस्ट बी इकोनॉमिकल फिजिबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल एंड टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल इसको इज़ कंसिडर टू बी आ रिसोर्स. यानी ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी नीड को फुलफ़िल कर सकती है. इकोनॉमिकली इट शुड बी एक्सेप्टेबल, ये इकोनॉमिकली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए और इकोनॉमिकली फिजिबल होनी चाहिए कि इतनी महंगी ना हो कि हमें उसको ख़रीद ना पाएँ. कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए और टेक्नोलॉजिकली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, यानी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए. अब मान के चलिए कि सपोज हेलीकॉप्टर कैन ऑल्सो फुलफिल द नीड्स ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल, बट दे आर नॉट इकोनॉमिकली फिजिबल फॉर अ नंबर ऑफ पीपल. इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है भाई हेलीकॉप्टर, क्योंकि वो नीड तो पूरा कर सकता है लेकिन वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है. वहाँ पे इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी नहीं है. ठीक है. तो ऐसे करके हम लोग कह सकते हैं वो हमारे लिए रिसोर्स है. जैसे मान लो एक पर्टिकुलर पर्सन है, इफ़ ही और शी इज़ ड्रिंकिंग अ लॉट, तो क्या लिकर जो है वो उसके लिए रिसोर्स है?
we can say it might be the resource for that particular person, but actually it is not, because it is not culturally acceptable. भाई हमारा कल्चर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है कि हमको ये सारी चीज़ें पीना चाहिए, तो इसलिए सिंपल सा है। दूसरा क्या है, हेलीकॉप्टर हमारी नीड को पूरा करता है, लेकिन हेलीकॉप्टर हमारे लिए इतना कॉस्टली है कि हम उसको परचेज़ नहीं कर सकते हैं, उसकी सर्विसेज को नहीं ले सकते। तो ऐसी बहुत सी दुनिया में चीज़ें हैं जो हमारी नीड्स को फुलफ़िल करें, बट द थिंग्स विच फुलफ़िल आवर नीड्स एंड इट शुड बी इकोनॉमिकल फिजिबल, ठीक है, कल्चरली एक्सेप्टेबल और टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल। हमको पता है कि भाई ऑक्सीजन इज़ डाइल्यूटेड ऑन द वाटर, क्योंकि ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला है वो H2O होता है, तो ऑक्सीजन इज़ डाइल्यूटेड ऑन द वाटर, इवन देन वी डू नॉट हैव अ टेक्नोलॉजी टू टेक आउट द ऑक्सीजन फ्रॉम देयर। तो हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं कि हम उस पर्टिकुलर चीज़ को वहाँ से निकाल पाएँ, तो ये हमारे लिए टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल नहीं है, यानी हम इस चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आ गया समझ में। तो दिस इज़ कॉल्ड द रिसोर्सेज, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इस पूरे चैप्टर में जो डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट आर रिसोर्सेज एंड वन बाय वन वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। क्लास 10th में मैंने ये चीज़ें पढ़ाई थी। मटेरियल्स प्रोवाइड सच एज मिनरल्स, फॉरेस्ट, वाटर, फर्टाइल लैंड दैट ऑक्यूपाइड इन नेचर कैन बी यूज्ड एज अ इकोनॉमिक गेन, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ें जो नेचर पे अवेलेबल है और हम उसको बेनिफिशियल के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, इकोनॉमिक गेन। भाई हम इकोनॉमिकल फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जितनी भी चीज़ें, आप कोई भी चीज़ उठा लीजिए, 95% चीज़ें ऐसी हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर नेचर ने बनाई है या उसमें नेचर द्वारा बनाए हुए किसी भी चीज़ों का यूज़ किया गया है, ठीक है। गॉट दैट पॉइंट। तो ये बेसिकली है हमारा टाइप्स ऑफ नेचर रिसोर्सेज कि भाई कौन कौन से अवेलेबल है। अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे, तो हम क्लासिफिकेशन के सामने आपको नज़र आ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम लोग बेस्ड करते हैं कि पोटेंशियबिलिटी, उसका पोटेंशियल्स क्या है। क्लासिफिकेशन में हम बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं उसके, या बेस्ड ऑन सॉर्टिंग के हिसाब से कि भाई बायोटिक है, अबायोटिक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ठीक है, कि वो बायोटिक है या वो अबायोटिक है। तो इसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशंस अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्लासिफिकेशन विल बी डन ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।